Hello students, today we are going to study about verbs. Verbs are the words which describe any action performed by the subject. A verb is a word which describes an action performed by the subject, the condition of the subject, or what is possessed by the subject. Okay, for example, we can say Meera sings very well and India is a good country. In our first example, we will see Meera sings very well. Means what Meera is doing? She is singing a song. She is singing very well. Okay. We can broadly classify verbs as main and auxiliary verbs. Okay. Here is a flow chart. You can take help from it. So let's see the classification of verbs. We can classify verbs as main and auxiliary. Main verb, what is main verb? Main verb can express its meanings independently and it tells us what the subject does, feels or is. For example, the dog ran on the road. मीन्स मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ये अपना मतलब खुद बताता है. ठीक है ना. फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं द डॉग रन ऑन द रोड. मीन्स जो डॉग है वो रोड के ऊपर भागा. ठीक है. तो यहाँ पे इसको किसी भी दूसरे वर्ब की मीन्स हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं थी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. तो ये होता है हमारा मेन वर्ब. इन द सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन सी कमला वेटेड फॉर हर फ्रेंड एट द मॉल. मीन्स कमला क्या कर रही थी? अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी. तो यहाँ पे वेट जो वर्ड है वो हमको खुद उसका मतलब बता रहा है कि कमला क्या कर रही थी. ठीक है. इसको यहाँ पे किसी भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स मूव टू सेकेंड वन, दैट इज़ द ऑक्सिलरी वर्ब. द ऑक्सिलरी वर्ब in a sentence helps the main verb to express its meaning or to show the tense. Got it? Words such as am, is, are, were, has, have, had, does, did, will, can and should are auxiliary verbs. Auxiliary verbs are also called helping verbs. I think you got it. कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं. गॉट इट. और जो मेन थिंग है जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं इससे हमें टेंस का पता लगता है सेंटेंस में कि कौन से टेंस की मतलब कौन से टाइम की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, वो हमें ऑक्सिलरी वर्ब से पता लगता है और वो आगे का जो मेन वर्ब होता है उसको एक्सप्रेस करने में हमारी हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, रोहित इज़ राइटिंग एन ईमेल. मीन्स रोहित लेटर लिख रहा है या ईमेल लिख रहा है. वो अभी भी वो काम कर रहा है. इज़ शोज द प्रेजेंट टेंस. ओके. रीना हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस. रीना की बहुत प्यारी बहुत ब्यूटीफुल वॉइस है. ठीक है. इफ़ सपोज आई विल से रजनी विल मीट हर कज़न टुमारो. तो विल वर्ड जो है वो हमें क्या शो कर रहा है कि वो कल मिलेगी, आज नहीं. वो फ्यूचर में मीन्स आज प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में नहीं, वो फ्यूचर में मिलेगी. तो दिस इज़ द वर्क ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब. वन मोर पॉइंट, द ऑक्सिलरी वर्ब्स बी, हैव एंड डू कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स. If suppose in a sentence there is no main verb, so these words act as a or auxiliary verbs act as a main verb. Okay. For example, Yashmin's mother is a doctor. So here we are not having any main verb. So is can be considered as a main verb. Okay. In the second one, Reena has a beautiful voice. So has can be considered as a main verb. Now let's move to the next topic which is very important in English grammar, that is subject verb agreement. It is very necessary for us for written and spoken English. There are certain rules that
the verb in the sentence has to agree with the subject. So before starting the rules, I would like to tell you one thing, that if the subject is singular, then the verb is also in the form of singular, but singular verb always contains s with it. Okay, for example, eats, writes, likes. Okay, so it contains s with it. So as an example, she eats an apple every day. So eats we will consider as a singular verb, and eat is always considered as a plural verb. Okay, eat, write means without s word the verb is known as plural verb. Okay, and with s it is always considered as a singular verb. Let's move to first rule of subject verb agreement, that is, if the subject is singular, the verb must be singular too. For example, she writes every day. Okay, second one is, if the subject is plural, the verb must also be plural. We can see the example, they write every day. They is always considered as a plural, and write is also a plural verb, as I have already told you earlier. Third point, when the subject of the sentence is composed of two or more nouns or pronouns connected by and, use a plural verb. Example, the engineering student and the committee members write every day. Here we can see that इस वाले सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि दो अलग अलग बातें हैं. द इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड द कमिटी मेंबर्स, हम किसके बारे में बात करें? दो अलग अलग लोगों के बारे में बात करें. एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और एक कमिटी के मेंबर्स हैं. तो जब दो बातें कही जाती हैं एक सेंटेंस में और उसको एंड वर्ड से ज्वाइन किया जाता है, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? डेट इट्स अ प्लूरल, है ना. एंड के साथ ये भी और वो भी, मीन्स जब हम दो बातों को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो वो एज अ प्लूरल ही कंसिडर किया जाएगा. तो प्लूरल के साथ कौन सा फॉर्म आएगा वर्ब का? राइट. राइट इज योर प्लूरल फॉर्म. तो द इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड द कमिटी मेंबर्स राइट एवरी डे. Clear? Now move to fourth one. When a phrase comes between the subject and the verb, remember that the verb still agrees with the subject, not the noun or pronoun in the phrase following the subject of the sentence. देखो, जब भी हम एक सेंटेंस की बात करते हैं, अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई फ्रेज़ आ जाता है, मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई कुछ और हमें इन्फॉर्मेशन देता है, तो हमें उस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देना है. हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है कि हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके ही अकॉर्डिंग हमें हमारा वर्ब जो है उसको लिखना है. ठीक है, तो हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट है वही रहेगा. चाहे फ्रेज़ के अंदर नाउन या प्रोनाउन कितने बार भी यूज़ हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट पे ही ध्यान देना है. जैसे है द स्टूडेंट कॉमा एज वेल एज द कमिटी मेंबर इज़ एक्साइटेड. हमने यहाँ पे वर्ब क्या यूज़ किया? इज़ क्यों यूज़ किया, जबकि हमारे पास तो कमिटी मेंबर्स भी थे बीच में. बट मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हमें हमारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है. हमारा सब्जेक्ट क्या था? द स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट्स. तो द स्टूडेंट मीन्स सिंगल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा वर्ब है वो भी क्या होगा? इज़ होगा. हमेशा ध्यान रखना है कि ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से ही चलते हैं. अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर होगा. सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है वो हमारी प्लूरल ही होगी. ठीक है. So let's move to next point, that is, when two or more singular nouns or pronouns are connected by or nor, use a singular verb. अब देखो, यहीं पे जब हमने एंड का देखा था कि अगर बीच में एंड लगा है और दो अलग अलग लोगों के बारे में बात की जा रही है तो हम उसको एक से ज़्यादा मानते हैं, मीन्स हम उसको प्लूरल
फॉर्म में कंसिडर करते हैं। बट यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि अगर दो अलग अलग बातों के बीच में हम और या नॉर वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको हम सिंगुलर ही मानेंगे, क्योंकि मैं ऐसे बोलूँगी नीता और गीता विल कम टुमारो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नीता और गीता दोनों आएंगे, मैं ये कह रही हूँ कि नीता या तो गीता आएंगे। ठीक है, इनमें से दोनों में से ही कल कोई एक आएगी। फॉर एग्जाम्पल, द चेयरपर्सन और द CEO अप्रूव्स द प्रपोजल बिफोर प्रोसीडिंग। ठीक है, या तो जो चेयरपर्सन है या फिर जो CEO है कंपनी का, वो ही हमारा प्रपोजल को आगे प्रोसीड करेगा। Got it? Now move to next one, that is when a compound subject contains both a singular and a plural noun or pronoun joined by or nor, the verb should agree with the part of the subject that is closest to the verb. This is also called the rule of proximity. ओके जब हम एक सेंटेंस की बात कर रहे हैं, एक ऐसे कंपाउंड सेंटेंस की बात कर रहे हैं जिसमें सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है और उसमें वर्ड और नॉर दोनों वर्ड्स दे रखे हैं, तो हम किस चीज़ को पहले कंसिडर करेंगे? जो भी वर्ब से जस्ट पहले वर्ड यूज़ हुआ है उसको हम एज अ सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम हमारा वर्ब रखेंगे। गॉट इट? मीन्स द स्टूडेंट और द कमिटी मेंबर्स राइट वेरी वेल। यहाँ पे हमने क्या देखा है? द स्टूडेंट को नहीं देखा है, और क्योंकि इसके बीच में और वर्ड आया है द कमिटी। ठीक है, हम यहाँ पे किसको देख रहे हैं? द कमिटी मेंबर। द स्टूडेंट और द कमिटी मेंबर्स राइट एवरी डे। ठीक है, तो द स्टूडेंट को हम नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो है राइट, मीन्स प्लूरल फॉर्म में है, तो उससे पहले जस्ट पहले जो वर्ड यूज़ हुआ है उसको हम एज अ सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे और उसके हिसाब से हमने हमारा वर्ब को लिखा है। तो हमारा जस्ट उससे पहले वर्ड क्या है? द कमिटी मेंबर्स। तो मेंबर्स आया तो डेट मीन्स इट्स अ प्लूरल फॉर्म एंड विद इट वी हैव रिटन राइट। गॉट इट? नाउ मूव टू 7th वन, द वर्ड्स and phrases each one, either, neither, everyone, everybody, anyone, anybody, nobody, somebody, someone and no one are singular and require a singular verb. ओके, हमेशा ध्यान रखना है जो भी वर्ड जैसे वन और बड़ी इनको लिए हुए है, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, ये जो वर्ड्स हैं, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं ये हमेशा सिंगुलर ही काउंट होंगे और इसके साथ हमको जो वर्ब फॉर्म है वो भी हमारी सिंगुलर ही रखनी है। आप बोलोगे मैम समवन और समबडी का तो मतलब एक ही होता है, तो समवन, देखो समवन जो होता है, जो वन वाले वर्ड्स हैं, समवन, एवरीवन, ईच वन, ठीक है, ये जो वन वाले वर्ड्स हैं ये हमेशा फॉर्मेलिटी के लिए या फॉर्मल के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हम ऑफिस में हैं या अपने एल्डर लोगों से बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, तब हम वन वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं। और समबडी, एवरीबडी, ये वर्ड्स हम कब यूज़ करते हैं? जब हम इनफॉर्मली होते हैं, मीन्स जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं या अपने से छोटे लोगों के साथ जब हम बात करते हैं तब हम एवरीबडी का यूज़ करते हैं, मीन्स बड़ी वर्ड्स जो हैं तब हम यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट हैज़ विलिंग टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, मतलब हर एक जो पार्टिसिपेंट था वो बहुत ज़्यादा विलिंग था अपने आप को रिकॉर्ड कराने के लिए। तो हमारा पार्टिसिपेंट्स क्या हो गया? यहाँ पे प्लूरल फॉर्म हो गया। ठीक है, उसके साथ हमने वॉज विलिंग टू बी रिकॉर्डेड, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो पार्टिसिपेंट्स नहीं है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ईच। तो ईच वर्ड हम एज अ सिंगुलर यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इसके साथ जो हमारा वर्ब है वो was यूज़ किया है। ओके, गॉट इट? नाउ मूव टू 8th वन, दैट इज नॉन काउंटेबल नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब। मीन्स जो नॉन काउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो भी हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के जैसे ही काउंट होता है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन इज़ द की ऑफ
सक्सेस, ठीक है। एजुकेशन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हमारे सक्सेस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हमारे हैप्पीनेस को, सैडनेस को, इन सब चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इनको हम हमेशा कैसे यूज़ करेंगे, कैसे कंसिडर करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में। द सेंटेंसेस विच बिगिन विद there is or there are, the subject follows the verb. Okay, since there is not the subject, so the verb agrees with what follows the verb. For example, there is a little support. ठीक है, there is और there are से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, तो ये हमेशा वर्ब को ही फॉलो करेगा। ठीक है, अगर इज़ है तो इसका मतलब हम किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, आर है तो इसका मतलब हम प्लूरल पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो नाउ let's see the 10th point, that is collective nouns are words that imply more than one person but are considered singular and take a singular verb. Some examples are group, team, committee, family and class. Got it? मीन्स कलेक्टिव नाउन्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, मतलब बहुत सारे नाउन्स जो हैं, बहुत सारी चीज़ों को अगर हम कोई एक नाम दे देते हैं, जैसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो अगर हम उसको एक साथ एक जगह पे रखते हैं तो हम उसको बुके नाम देते हैं, तो बुके को हम एक सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तब। ठीक है, फॉर एग्जांपल द ग्रुप मीट्स एवरी वीक। ठीक है, द ग्रुप मतलब जो ग्रुप है वो हर वीक आपस में मिलता है। ठीक है, एक ग्रुप की बात करें, अगर ग्रुप्स होता तो हमारा जो वर्ब है वो मीट में कन्वर्ट हो जाता। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, subject, verb and agreement. Soon I will be uploading the next part of this video in which I will tell you more about verbs. Okay, so stay safe, stay home. Thank you.